जीशु ख्रीष्टंकर पवित्र नाम रे प्रत्येक को नमस्कार जनाए एवं विशेष भाव में आज विशेष बाइबल अध्ययन को आपण मान को प्रत्येक को स्वागत करुच्छे। आम माने गत वर्ष जो विशेष पुस्तकर अध्ययन को आरंभ करूँ ताहा जारी रखीचु। आम माने जानू यह अनेक समय लागुअछि किंतु आम माने अध्याय अनुसार चेष्टा करुचु ए पुस्तक मध्य दे जिबार निमंते। आसंतु आम माने प्रभुंकर साहाय्य लोड़िबा, प्रभुंक ठारे निजको समर्पण करिबा एवं प्रार्थना करिबा। आज अध्ययन को प्रभुंक हस्तरे देबा। स्वर्गस्थ पिता पुणी थरे आम को आउ एक सुजोग देई अछ तुमर चरण तले बसिबा पाई, वाक्य अध्ययन करिबा पाई। प्रभु आममानकर निजर ज्ञान किंबा बुद्धि किंबा कौशल द्वारा तुमरी पवित्र वाक्यर मर्म को बुझिबा को पारिबु नाही। तुमे आममान को बुझेई न देले, तुमे आममान को न शिखेले आमने बुझिबु केमिति, शिखिबु केमिति। प्रभु तुमे ही तुमरी आत्मा द्वारा आममान को चलाई नियो, कथा कुह, प्रत्येक को आशीर्वाद कर। आज अध्ययन समस्त भार पुणी विशेष करी प्रत्येक भाई भणी पुओ झीकर समस्त भार तुम हस्तरे देउछि। प्रभु जेते जन ए ऑनलाइन बाइबल अध्ययन रे जोग दैछंती, परवर्ती समय जो माने जोग देबे प्रत्येक को तुमे आशीर्वाद कर। धन्यवाद दे ए प्रार्थना जीशुଙ୍କ नाम रे उत्सर्ग करूछु, आमेन। आसंतु आमने बाइबल अध्ययन मध्य को जीवा पूर्व गोटे गीत बोलिबा एवं प्रभुंकर निकटवर्ती हवा, पुणी बाइबल अध्ययन पाए निज निजर हृदय एवं मन को प्रस्तुत करिबा।
এই পর্যন্ত মানে 7টি অধ্যায়ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଅଛୁ। 6 ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ସପ୍ତ ମୁଦ୍ରା ଭଙ୍ଗା ଯିବାର ଦର୍ଶନ ଯାହା ଯୋହନ ପାଇଲେ ଆଉ ସେଇ ବିବରଣ ବିଷୟକୁ ଆମମାନେ ପାଠ କରିଛୁ, ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛୁ ଏବଂ 6 ଅଧ୍ୟାୟର ଶେଷ ବେଳକୁ ଷଷ୍ଠ ମୁଦ୍ରା ଭଙ୍ଗା ଯିବାର କଥା ଲେଖା ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ସପ୍ତମ ମୁଦ୍ରା ଆମମାନେ 7 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଙ୍ଗା ଯିବାର ବିଷୟ ଦେଖୁଅଛୁ ଏବଂ 7 ଅଧ୍ୟାୟ ସେଇ ସପ୍ତମ ମୁଦ୍ରା ପରେ ଆଉ ତାପରେ ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଅଛୁ ଆଉ ସେଥିରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବଦଳି ଯାଉଛି, ଅବସ୍ଥା ବଦଳି ଯାଉଛି। ମୁଦ୍ରା ଭଙ୍ଗା ଯିବାର ବିବରଣରୁ ଯୋହନ ଲେଖୁଅଛନ୍ତି ସପ୍ତ ତୁରୀ ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ଆଉ ସପ୍ତ ପିଆଲା ଦ୍ୱାରା ଢଳା ଯାଉଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ସମ୍ପର୍କରେ। ତେବେ 6 ଅଧ୍ୟାୟ ଏବଂ 8 ଅଧ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି 7 ଅଧ୍ୟାୟର ବିବରଣଟି ଆଉ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ବିଶେଷ କରିକି ସପ୍ତମ ମୁଦ୍ରାର ବିଷୟ ଯାହା ଆସୁଛି, ଆମମାନେ ସେଥିରେ ଗତ ଥର ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ଯେ ଏହି ସପ୍ତମ ମୁଦ୍ରାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଯାହା ପୃଥିବୀରେ ଢଳା ଯାଉଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆଉ ସେଥିରେ ଲେଖାଯିବାର ଆମମାନେ ଦେଖୁଅଛୁ। କହିବାକୁ ଗଲେ ସପ୍ତମ ମୁଦ୍ରା ଭଙ୍ଗା ଗଲା ବେଳକୁ ଆଉ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟର ବିଷୟ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଉଛି। ତାପରେ ପରେ ଆସୁଛି ସପ୍ତ ତୁରୀ ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ସପ୍ତ ପିଆଲା। ତେବେ ଆମମାନେ 7 ଅଧ୍ୟାୟର ବିଷୟ ଗତ ଥର ଚିନ୍ତା କରିଥିଲୁ ଆଉ ଯେଉଁଠି ଆମମାନେ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର କି ପ୍ରକାର ସେ ମହାଜନତା ସେମାନଙ୍କର ଆଖିରୁ ଲୋତକ ପୋଛି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ କ୍ଷୁଧା କି ତୃଷା ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ଅନନ୍ତ କାଳର ନିମନ୍ତେ ସେ ନିଜେ ସେମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଅଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ସେଇଠି ଗତ ଥର ଶେଷ କରିଥିଲୁ। ଆଜି ଆମମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା 8 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମମାନେ ବିଶେଷ କରିକି ଦେଖୁଅଛୁ 8 ଏବଂ 9 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏହି ସପ୍ତ ତୁରୀ ଦ୍ୱାରା ଢଳା ଯାଉଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧ ବା 7ଟି ଦୂତ 7 ଜଣ ଦୂତ 7ଟି ତୁରୀକୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଫୁଙ୍କୁଅଛନ୍ତି, ତୁରୀ ଧ୍ୱନି କରୁଅଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କି ପ୍ରକାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟର କାଣ୍ଡ ସବୁ ଘଟୁଛି। ଏ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ସବୁ ଘଟୁଛି ଯାହା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ହେଇନଥିଲା କିମ୍ବା ତା ଉତ୍ତାରେ ଆଉ କେବେ ହିଁ ଘଟିବ ନାହିଁ, ଯାହାକି ମହାକ୍ଲେଶ ସମୟରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପର୍କରେ ଅଟେ। ଆଉ ତେବେ ଏଠି ଆମମାନେ ବିଶେଷ କରିକି ପ୍ରଥମ 5ଟି ପଦରେ ସପ୍ତ ତୁରୀ ଧାରଣ କରିଥିବା ଦୂତମାନଙ୍କର ବିଷୟ, ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ସବୁ ଲେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଯୋହନ ଆଉ କିଛି ବିଷୟର କଥା ଆମମାନଙ୍କୁ 8 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ 5 ପଦରେ ସେ କହୁଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣମାନେ ମନ ଦେଇପାରନ୍ତି, ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରନ୍ତି ବା ନିଜ ବାଇବଲ ଥିଲେ ଖୋଲିକି ଦେଖିପାରନ୍ତି। ପ୍ରକାଶିତ 8 ପର୍ବ 1ରୁ 5 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ରେଭେଲେସନ 8:1-5। ମେଷ ଶାବକ ଯେତେବେଳେ ସପ୍ତମ ମୁଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିଲେ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରାୟ ଅର୍ଦ୍ଧଘଟିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୀରବତା ବିରାଜିତ ହେଲା। ତତ୍ପରେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ସପ୍ତ ଦୂତଙ୍କୁ ଦେଖିଲି। ସେମାନଙ୍କୁ ସପ୍ତ ତୁରୀ ଦତ୍ତ ହେଲା। ସେଥିରେ ଆଉ ଜଣେ ଦୂତ ଆସି ବେଦୀ ନିକଟରେ ଠିଆ ହେଲେ। ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଧୂପାଚି ଥିଲା। ପୁଣି ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବେଦୀ ଉପରେ ସମସ୍ତ ସାଧୁମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଯୋଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଧୂପ ଦିଆଗଲା। ସେଥିରେ ଦୂତଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଧୂପର ଧୂମ ସାଧୁମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉତ୍ଥିତ ହେଲା। ପରେ ସେହି ଦୂତ ଧୂପାଚି ଘେନି ବେଦୀର ଅଗ୍ନିରେ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପକାଇଦେଲେ। ସେଥିରେ ବଜ୍ର ଧ୍ୱନି, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱର, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଓ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା। ଆମମାନେ ଜାଣୁ 6 ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପିତାଙ୍କର ହସ୍ତରୁ ସେହି ସପ୍ତ ମୁଦ୍ରାରେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ପୁସ୍ତକକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିକି 6 ଅଧ୍ୟାୟର ଆରମ୍ଭରେ ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେଗୁଡ଼ାକ ସେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗୁଅଛନ୍ତି ବା ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପୁସ୍ତକର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରା ଭଙ୍ଗା ଯିବା ସମୟରେ, ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେବା ସମୟରେ ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ସବୁ ଘଟୁଅଛି ପୃଥିବୀରେ। ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଷଷ୍ଠ ମୁଦ୍ରା ଭଙ୍ଗା ଯିବା ଉତ୍ତାରେ 7 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଏକ ଇଣ୍ଟରଲ୍ୟୁଡ ପିରିୟଡ଼, ଅର୍ଥାତ୍ ଷଷ୍ଠ ମୁଦ୍ରା ଏବଂ ସପ୍ତମ ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ କିଛି ବିରତିର ସମୟ ଭଳି
जहाँकि संगीत रे साधारणतः आम मैंने देखी था घोषा एवं अंतरा मध्य जो म्यूजिकटा रही थाए आउ से प्रकार भाव में इंटरल्यूड बोली जाको कहते से प्रकार विषय आम मैंने 7 अध्याय देखुअछु एवं ए 8 अध्याय सप्तम मुद्रा भंगा जाउची जहाँकि परवर्ती 2 पर्याय आसुथिबा दंडाज्ञा को से उपस्थापन करुअछि। आउठी आम मैंने देखुअछु जे प्रभु जीशु से सप्तम मुद्रा मध्य भांगु अछंती आउ सेते बेले ए सप्तम मुद्रा जहाँकि भंगा जाउची से समय गोटे भिन्न प्रकारर परिवेश सृष्टि होउची स्वर्ग रे एथिरे लेखा जाउची मेष शावक जेतेबेले सप्तम मुद्रा भांगिले सेतेबेले स्वर्ग रे प्राय अर्ध घटिका पर्यंत नीरवता विराजित हैला। आपणकर मन निश्चय रहिबो जेतेबेले कि आम माने 4 अध्याय 5 अध्याय ए प्रकार कि 6 अध्याय विषय मध्य जेते आम माने देखुथिलु से समय स्वर्ग रे केबे भी नीरवता छाई थिवार कथा आम माने देखि नाहु। सेठी सबु बेले विद्युत वज्र ध्वनि एवं विशेष करिकी वीणार ध्वनि दूतमानकर प्रशंसा साधुमानकर प्रशंसा प्राचीन मानकर प्रशंसा आ प्रशंसा गीत रे स्वर्ग सबु बेले परिपूर्ण अटे। उपासना आराधना रे परिपूर्ण मुखरित होउथवा स्वर्ग जेतेबेले मेष शावक से सप्तम मुद्रा भांगु अछंती लेखा जाउची जे सेठारे नीरवता छाई गला। ए प्रकार केबे हुई तो है नाही जे स्वर्ग रे नीरवता केही कौन सी प्रकार शब्द करुनाहांती कौन सी प्रकार स्वर कौन सी प्रकार ध्वनि शुणा जाऊ नाही आउ लेखा जाउची अर्ध घटिका पर्यंत स्वर्ग रे नीरवता आउ सेठी आम माने विशेष करके देखुचु जे अर्ध घटिका पर्यंत कौन सी प्रकार स्वर नाही केही किछि कहू नाहांती केही किछि शुणु नाहांती जोहन मध्य मु भाबुची से दर्शन देखिबा समय अबाक हेकी रहिथिबे से मध्य चुप रहिके होइतो ठिया आइथिबे जे कौन प्रकृत रे घटु अछि। आम माने विशेष करके जानू कहीं ए प्रकार हेउछि गोटे जेमती कि झड़ आसीबा पूर्वरु हठात गोटे माने अचानक नीरवता रहिबार जना पड़े ठीक सेमती माने से गोटे सूचना दौची जे या परे जहा हबाकू जाउची ताहा बड़ भयंकर ए पर्यंत जहा घटी अछि ताठारु आहुरी भयंकर विषय सबु हेबाकू जाउछि आउ जितेबेले ताहा ही घटिबाकू जाउछि अर्थात परमेश्वर दीर्घ समय धरी जो समय विषय को से करिबार निमंते सिद्धांत नहीं सबुबले अन्यायर राज चलिब नाही सबुबले दुष्ट मानकर राज चलिब नाही ए पृथ्वी एवं पृथ्वी निवासी मानकु परमेश्वर से मानकर कर्मर प्रतिफल देबे से न्याय विचार आनिबे आउ सेथिपाई जो सबु विषय ताहांकु क्रोधान्वित करिअछि से सबु क्रोध को से एकाठी रखी अछंते एवं से सबु एका बेले के ढाळिबाकु जाउ अछंते। सेथिपाई ए सप्तम मुद्रा भंगा जिबा परे आउ जो सबु घटना पृथ्वी मध्यरे आकाश मंडल रे प्रकृति जगत रे लोकमानक मध्यरे जो सबु भयंकर घटना सबु घटिबा आउ कि प्रकार भावरे पर्यायक्रमे अनेक अनेक संख्यक लोक माने मृत्युवरण करिवे जीवजंतु सबु मृत्युवरण करिवे प्राकृतिक विपर्यय सबु हब ए सबु विषय को चिंता करिके समस्ते नीरवरे अछंती ओ या परे कौन हवाकू जाउछि ठीक से प्रकार परमेश्वरंकर से कार्य को प्रकाश करिके भयंकर क्रोध ढला जिबा पूर्वरु अर्ध घटिका पर्यंत सेठारे नीरवता रहुछि। 8 पर्वर 2 पदरे आम माने देखुचु तत्परे मु ईश्वरंक सम्मुखरे दंडायमान सप्त दूतंकु देखिले सेमानकु सप्त तुरी दत्त हैला 7 जन दूत से माने ईश्वरंक छामुरे ठिया आइचंती आउ से माने
विशेष दूत अटंती कारण से विशेष दायित्व दि जाउछि प्रत्येक जन को किछि ना किछि करिवार दायित्व दि जाउछि बा प्रत्येक दूत को जो तुरीटी दि जाउछि से प्रत्येक दूत पाଳି अनुसार से माने निज निज तुरीर ध्वनि को शुणेबे आउ से मानकु एई समस्त तुरी दियागला आउ जो प्रकार भावरे या परवर्ती समय अर्थात तुरी एवं पियालार द्वारा ढला जाउथिबा जो समस्त दंडाज्ञार विषय आम माने देखुछु जोटा कि सप्तमुद्रारे मध्य किछिटा अंश सिथेरे घटिथिबार आम माने देखुछु खाली एतिकी जे एई समय मानकरे एहार परिमाण बढ़ी जिवो एहार व्यापकता बढ़ी जिवो एवं एहार प्रबलता बढ़ी जिवो ईश्वर जेतेबेले विचार करिया पाए बा दंड देवा पाए आसीबे केही हेले बर्ती जाई पारिबे नाही तापरे परे ए सप्तदूत तुरी धारण कले किंतु से माने फुंकीबा पाए तुरी बजेइबा पाए उद्यत हेबा पूर्वरु आम माने देखुछु आउ जणे दूतंको आउ जणे दूत से कौन करुअछंती 3 पद एवं 4 पदरे सेथिरे आउ जणे दूत आसी बेदी निकटरे ठिया हेले ताहांक हस्तरे सुवर्ण धूपाची थिला पुणी सिंहासन सम्मुखस्थ सुवर्ण बेदी उपरे समस्त साधु मान प्रार्थना सहित जोग करने निमंते ताहांको प्रचुर धूप दियागला सेथिरे दूतंक हस्तरु धूपर धूम साधु मान प्रार्थना सह ईश्वर सम्मुखरे उत्थित हैला जोहनकर दृष्टि वर्तमान चली जाउची ए दूतंक आड़को आउ से अन्य दूत मान भली तुरी धारण करि नाहंती किंतु गोटे धूपाची को धारण करि अछंती आउ से बेदे निकटरे ठिया हेले अन्य जणे दूत बोली कुहा जिबा द्वारा बा आउ जणे दूत बोली कुहा जिबा द्वारा एथिरे हम माने देखुछु जे से पूर्व 7टी दूत जो मान को 7टी तुरी दिया गला से मान ठारू से भिन्न अटंती आउ से बेदी निकटरे दंडायमान अटंती एठारे से बेदीर कथा देखुछु जहा पृथ्वी रे मध्य समागम तंबुरे मशांक द्वारा तैयारी करा जाइथिला एवं व्यवहार होउथिला जहा परवर्ती समय सोलोमन राजांक द्वारा मंदिर रे तैयारी करा जाइथिला एवं व्यवहार होउथिला तार गोटे आ प्रकृत छवि एठारे आम देखुछु कहया को गले पृथ्वी रे जहा करा गला मूसा किंबा सोलोमन कर नेतृत्व समय रे ताहा स्वर्गर ए बेदीर गोटे निदर्शन मात्र थिला गोटे चिन्ह मात्र थिला कहया गले ताहा थिला छाया मात्र वास्तव बेदी स्वर्गरे वास्तव मंदिर स्वर्गरे स्वर्गरे जे प्रकार अछि से प्रकार एक नक्शा एमान को दिया गला आउ से माने तदनुसारे तैयारी करथिले आउ तांको हस्तरे एई दूत जे ठिया आइछंती बेदी निकटरे ताहांकु गोटे सुवर्ण धूपाची दिया गला आउ से कोन करछंती सेठारे धूप से ढाळु अछंती लेखा जाउची प्रचुर धूप ढळा गला आउ तापरे लेखा जाउची जे से साधु मानकर प्रार्थनार सहित से धूपाचीर धूप मिशिला एवं ताहा ऊर्ध्व को उठेला तापरे पर लेखा जाउची से जो बेदीरु से अग्नि नेले से धूपाचीरे परिपूर्ण कले एवं ताहाको पृथ्वी रे पकई देले एठी हम माने कोन देखुछु धूप धूपाची अग्नि साधु मानकर प्रार्थना एवं ताहा ईश्वरଙ୍କ छामरे उपस्थित हेउछि विशेष करिके सेई साधु मानकर प्रार्थना जो मानक विषय 6 अध्याय रे जोहन कहि अछंती बेदी तळे मो ख्रीष्टंकर निमंते सुसमाचार निमंते ईश्वरଙ୍କ राज्यर निमंते साक्षम रहिथिबा साधु मानकर आत्मा मान को देखिली से माने जो प्रार्थना उत्सर्ग करथिले सेई प्रार्थनार उत्तर स्वरूपे वर्तमान रे घटना गुडी को घटु अछि बा ए दूत मानकर द्वारा जो घटना सब घटिबा को जाउ अछि ताहा हेउ अछि से माने कोन प्रार्थना करथिले अन्यायर प्रतिकार कर आम मानकर शत्रु मानकर परिशोधनीय पाप संपूर्ण भावरे लोप पाओ एवं दियाबल संपूर्ण भावरे नष्ट हो ए प्रकार प्रार्थना से माने उत्सर्ग करथिले आ ताहार उत्तर से माने प्रश्न करथिले हे परमेश्वर आउ केते काल परमेश्वर से मान को प्रत्युत्तर दे कहिथिले आ अल्प क्षण विश्राम कर
कारण तुमମାନଙ୍କ सहित आहुरी अन्य साक्षमर माने मध्य जोग देबे सेमानकर सही संख्या संपूर्ण न हेबा जाए अल्प क्षण विश्राम कर तापरे जहाँ तुमने मागुअछ से उत्तर दियाजिव तुमମାନଙ୍କର अन्यायर प्रतिकार କରାଯିବ तुमମାନଙ୍କ प्रति जो माने अन्याय करछंती सेमानको परिशोध କରାଯିବ आ ताहा माने एठारे देखुअछु 5 पदरे लिखा जाउछि परे सेही दूत धूपाची घेनी बेदीर अग्नि रे ताहा पूर्ण करी पृथ्वी उपरे पकाई देले सेथिरे वज्रध्वनि विभिन्न स्वर विद्युत और भूमिकंप हैला साधु मानकर प्रार्थना ईश्वर निकटर उपस्थित हवा बेले ईश्वर ठारू दंडाज्ञा तार उत्तर स्वरूपे दंडाज्ञा पृथ्वी उपर को आसुछि भाई भणी माने जेतेबेले विभिन्न प्रकार कष्टकर परिस्थिति रे आपण न्यायर निमंते ईश्वर शरणागत होइछन्ते अथच ए पृथ्वी रे मनीष माने न्याय देई नाहंते आपण मानकर पाई गोटे शुभ संवाद बोली कहिबे ताहा होछि कौन आपण मान प्रति करा जाइथिबा अन्याय अदंडित होइकी सदा काल रहिब नाही से अन्यायर प्रतिकार करा जीव ताहार प्रतिशोध परमेश्वर देवे परमेश्वर जे कि न्यायवान विचारकर्ता अटंते जे कि अंतकरणर मर्म को तौलंती प्रत्येक मनीषर एटीट्यूड को जे कि से तौली पारंती मापी पारंती से परमेश्वर से केबे भी अन्याय को सब बेले रहिया पाई देबे नाही आउ सेथि पाई जेतेबेले से न्यायदंड उठाउछन्ते आउ सेतेबेले ए घटना सब घटुअछि एटी लिखा जाउछि जे स्वर्ग रे जो अर्धघटिका पर्यंत घटिथिबा से नीरवता भंग होछि कारण वज्रध्वनि विभिन्न स्वर विद्युत और भूमिकंप हैला बोली लिखा जाउछि अर्धघटिका पर्यंत स्वर्ग रे नीरवता कहीं कहीं ए प्रकार भाव रे ताको हिसाब करते कारण विशेष करिकी बाइबल रो कैलेंडर अनुसार 360 दिन रे गोटे वर्ष 24 घंटा रे गोटे दिन आउ जदि भाववाणी मूलक वर्षर कथा कहा जाए भाववाणी मूलक दिनर कथा कहा जाए ताहले गोटे दिन अर्थात गोटे वर्ष सांगे समा से प्रकार भाव रे से माने कलना करते आउ जदि ताहा हुए 24 घंटा रे 360 दिन ताहले गोटे घंटा रे केते दिन होउची प्राय 15 दिन होउची तेबे अर्ध घंटा रे 7.5 दिन गोटे सप्ताह रु आउ अल्प समय जो समय की स्वर्ग रे नीरवता छाई थिला बोली के आउ से माने कहंती तेबे से जहाँ भी हो आम माने गोटे विषय देखुचु जे 8 अध्यायर आरंभ रे जो नीरवता थिला ताहा भंग होउची जेतेबेले धूपाची धरिथिबा दूत सेथिरे अग्नि संयोग करिकी से पृथ्वी उपरे ताहा पकई दउछंती एथिरु दुईटी विषय आम माने देखुछु गोटे होची कौन ए पर्यंत जो प्रार्थनार सेवा चली ताहा बंद होउची एवं से प्रार्थनार उत्तर स्वरूपे ईश्वर ठारू क्रोध एवं दंडाज्ञा पृथ्वी उपरे ढला जाउची कई ए धूपाची धरिथिबा दूतंको प्रभु जीशु बोली के मध्य कहंती कारण प्रभु जीशु स्वर्ग रे महायाजकीय प्रार्थना करुअछंती से महायाजकीय कार्य को करुअछंती पृथ्वी रे तांकर बलिदानर कार्य सरीला से अपना रक्त पवित्र वेदी रे से सेंचेले एवं से स्वर्ग को जाई अछंती एवं पितांकर दक्षिण पार्श्व रे रहिकी नित्य निवेदन करुअछंती भाई भणी माने आपणकर प्रार्थना मोर प्रार्थना स्वर्गर परमेश्वर केमिति शुणती आ काहींकी शुणती भावुंट कि जे आम मानकर प्रार्थना भारी सुंदर प्रार्थना चमत्कार प्रार्थना शक्तियुक्त प्रार्थना ओ ए प्रकार की विश्वास रे परिपूर्ण प्रार्थना सेथिपाई भूली जातु इतर कौन सी गोटे विषय पाई मध्य नुहे गोटे मात्र विषय सकाशे आपणकर प्रार्थना मोर प्रार्थना शुणा जाउछि पितांक द्वारा पितांक निकटरे उपस्थित हेउछि से जणे
ମହାଯାଜକଙ୍କର ସକାଶେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୋ ଦେଇ ନ ଗଲେ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ପୃଥିବୀର ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ମାତ୍ର ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାଧୁ ପାଉଲ ଲେଖନ୍ତି, ଜଣେ ମାତ୍ର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଈଶ୍ୱର ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ। ସେହି ମଧ୍ୟସ୍ଥିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଲେ ଯାଇକି ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କତିରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା, ବା ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ ସବୁ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ଆଉ ସେ ଜଣେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି, ସେ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆଉ କାହାକୁ ଆଣିକି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେ ଯେତେ ବଡ଼ ସାଧୁ ହେଇଥାନ୍ତୁ ବା ସାଧ୍ୱୀ ହେଇଥାନ୍ତୁ ବା ଯିଏ ବି ହେଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଏ ପ୍ରକାର କି ସ୍ୱର୍ଗରେ ବାସ କରୁଥିବା କୌଣସି କିରୁବ କିମ୍ବା ଦୂତ ବି ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଜଣେ ମାତ୍ର ମଧ୍ୟସ୍ଥି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ତ୍ରିତ୍ୱ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱରେ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପୁତ୍ର ଈଶ୍ୱର। ସେ ଏବେ ବି ସେହି ଶରୀର ଧାରଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ମହାଯାଜକ ଭାବରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପୃଥିବୀରେ ଥାଇକି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ଆମମାନଙ୍କର ଏ ଦୁର୍ବଳ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିନତି ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସେ ଆପଣାର ଧାର୍ମିକତାରେ ତାହାକୁ ଘୋଡ଼ାନ୍ତି, ଆପଣାର ଧାର୍ମିକତାରେ ତାହାକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରନ୍ତି ଏବଂ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସେହି ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା, ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି। ଆଉ ପୃଥିବୀରେ ଆମମାନେ ଉତ୍ତର ସବୁ ଦେଖୁ ଆମମାନଙ୍କର ନିଜ ଜୀବନରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥାଉ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆମମାନେ ଉତ୍ତର ସବୁ ଦେଖୁ ବା ଈଶ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଦେଖୁ। ଆଉ ଯେହେତୁ କ'ଣ ମାଗିବାକୁ ହବ, କେମିତି ମାଗିବାକୁ ହବ, ତାହା ଆମମାନେ ଜାଣୁନାହୁଁ। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ମହାଦୟାରେ ମହାପ୍ରେମରେ ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କ ନିଜର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ତେବେ ତ୍ରିଏକ ପରମେଶ୍ୱର এই ପ୍ରାର୍ଥନାର କାର୍ଯ୍ୟରେ, ପ୍ରାର୍ଥନାର ସେବାରେ ସାମିଲ ଅଟନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରମେଶ୍ୱର ଯିଏକି ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣକାରୀ ଅଟନ୍ତି, ସେ ଶୁଣନ୍ତି। ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗରେ ତାହାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପୁତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ମହାଯାଜକ, ଯିଏକି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ସବୁକୁ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଥୁଅନ୍ତି। ଏବଂ ପୃଥିବୀରେ ଆମମାନଙ୍କର ଏ ଦୁର୍ବଳ ଜୀବନରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ନିମନ୍ତେ, ଅକଥନୀୟ ଆର୍ତ୍ତସ୍ୱର କରିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାର ନିମନ୍ତେ, ପ୍ରାର୍ଥନାର ସେବାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ନିମନ୍ତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ, ହୃଦୟର ବେଦୀରୁ ଆମମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହାୟତାରେ, ସେହି ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ପୁତ୍ର ନିଅନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଅନ୍ତି, ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣାଯାଏ। ନହେଲେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ପୁରାତନ ନାଗ, ସେ ପୁରାତନ ଦିଆବଳ, ଯିଏକି କୋଟି 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 ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରି ଆସିଅଛି, ଆଉ ଯିଏକି ଆମମାନଙ୍କର ବିରୋଧୀ ଅଟେ, ସେ କି ଆମମାନେ ଆଣ୍ଠୁ ପକାଇଲା କ୍ଷଣି ଥରହର ହେଇକି ବାହାରିଯିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହେଇକି ତାହାକୁ ଧମକ ଦେଲେ ସେ ଚାଲିଯିବ। ସେ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ ଡରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତ୍ରିଏକ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାର ସେବାରେ ସାମିଲ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଭୟଭୀତ ହୁଏ। ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଜୀବନକୁ ପଙ୍ଗୁ କରିଦେଇଛି ଶୟତାନ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ଆଣିକି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିର ଚାପ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଜୀବନରେ ସତେ ଯେମିତି ପଙ୍ଗୁ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହିବାକୁ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ହାତ ତୋଳି ଟେକିବା ପାଇଁ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାହାନା ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖାଯାଏ। ଯଦି ବା ସ୍ୱର୍ଗ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଅପେକ୍ଷା କରୁଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୀତ ସଂହିତାରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆହେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣକାରୀ ଯେ ତୁମ୍ଭ ନିକଟକୁ ସକଳ ପ୍ରାଣୀ ଆସିବେ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଜୀବନ କି ପ୍ରକାର? ଯେତେବେଳେ କି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ସାଜିକି ସେ ମହାଯାଜକ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି,
एवं जितेबेले कि पिता ईश्वर ही आम मानकर प्रार्थना को ग्रहण करके उत्तर देवार निमंते प्रस्तुत अच्छे आमे कहीं ए विशेष दायित्व रे खिलाफ करिबा, कहीं ए विशेष कार्य को विशेष सेवा को अवहेला करिबा। भाई भणी माने टिके आम माने जदि मनोयोग करिबा परिवार भावरे मंडली भावरे केते बड़ बड़ कार्य सब साधित हब आम मानकर जीवन द्वारा केबे भाबिछन्ते कि? किंतु मने रखंतु एइटा सब समय रहिबो नाही, एइटा दिने बंद हेइ जिवो। कारण ए समस्त प्रार्थनार उत्तर जेतेबेले परमेश्वर देबाकू जाउछन्ते सेतेबेले पृथ्वी रे क्रोध ढळा जीव। लोक माने अनेक लोक माने जो माने ताहांकू जानि नाहांती से माने से समस्त क्रोधर शिकार हेबे। आम माने देखुचु 8 अध्याय 6 पदरु 9 अध्याय 21 पद पर्यंत सप्त तुरीधारी दूत माने से माने निज निजर तुरी को फुंकु अच्छंती एवं कि प्रकार गोटे पर गोटे घटना ए पृथ्वी बक्षरे घटिबा को जाउछि ताहा माने परवर्ती पद मान करे देखुछु। प्रथम 4 जन दूत से माने दंडाज्ञार तुरी को फुंकु अच्छंती। आउ से गुड़िक प्रकृति जगत रे अर्थात पृथ्वी बक्षरे पृथ्वीर वातावरण परिवेश उपरे प्रभाव पकाउछि। एगुड़ाक वास्तव आक्षरिक एवं प्राकृतिक घटना गुड़िक जाकु कि प्राकृतिक विपर्यय बोली कुहाजिव। परमेश्वर ए प्रकृति जगत को व्यवहार करिवे आपनार क्रोध से शेष दिन मान करे मनीष मान उपरे ढाळिबार निमंते। प्रथम दूत से आपनार तुरी को बजाउछंती जहाँ माने 6 पद एवं 7 पद रे देखुछु। सेतेबेले सप्त तुरीधारी सप्त दूत तुरी ध्वनि करने को प्रस्तुत हेले। प्रथम दूत तुरी ध्वनि करन्ते रक्त मिश्रित शिला और अग्नि उपस्थित होई पृथ्वी रे निक्षिप्त हला। सेथिरे पृथ्वी और वृक्ष समूहर तृतीयांश पुणी समस्त हरित वर्ण तृण दग्ध हला। प्रथम दूत जेतेबेले आपनार तुरी बजेइले सेतेबेले रक्त मिश्रित शिला और अग्नि उपस्थित हला। से गुड़िक पृथ्वी उपरे निक्षिप्त हला। शिला साधारणतः ईश्वरंकर वाक्य रे ईश्वरीय दंडाज्ञा बा क्रोध सहित ताको प्रकाश करा जाए बा शिला साधारणतः ईश्वरंकर क्रोध दंडाज्ञा को प्रकाश करे। आउ सते जेमति कि से प्रचंड अग्नि रे ताहा प्रकाशित हेउछि। तेबे एठारे दुईटी विषय अग्नि और शिला रक्त मिश्रित भाव आउ ताहा दिया जाउछि जो विषय कि जोएल भाववादी मध्य 2 पर्वर 30 पदरे से लेखन्ति। आउ से दिन को से घटना को से सदा प्रभुंकर दिन बोलिकी से प्रकाश करन्ति। पृथ्वी बक्षरे ए प्रकार भयंकर घटना घटिब कि प्रकार विषय सब घटिब से समय तार अवस्था कि प्रकार हम प्रकृति जगत रे ताहा मध्य एथिरे लेखा जाउछि जे हरित वर्ण वृक्ष मानक मध्यरु तृतीयांश नष्ट होउछि। तृतीयांश पृथ्वीर वृक्ष समूहर तृतीयांश पुणी समस्त हरित वर्ण तृण दग्ध हला। 1/3 कह गले प्रत्येक थर 1/3 এই जो विषयटा आम माने এই विवरण रे देखिबा को पारुछु। सते जेमति कि परमेश्वर क्रोध पृथ्वी उपरे ही ढला जाउछि। आउ जदि वृक्ष समूह नष्ट हो जीव हरित वर्ण तृण फसल सब नष्ट हो जीव ताहले मनुष्य मानकर अवस्था कौन हब? बंचिबार निमंते ये सब विषय उपरे आमे स्वाभाविक भाव निर्भर रखु। सबुज वृक्ष सबुरु बा सबुज पत्र सबुरु जो अम्लजान आसे ताहा मानकर बंचिबार निमंते पुणी जो फसल सब द्वारा जो खाद्य द्रव्य सब उत्पन्न हुए ताहा मध्य आम मानकर बंचिबार निमंते एवं आम माने जो अंगारकाम्ल त्याग करू
से सबू ए वृक्ष सबू साउंटी नियंती जद्वारा आममानकर वायुमंडल दूषित हुए नाही, परिष्कार रहे। अवश्य आज वायुमंडल दूषित हबार प्रधान कारण होउची कलकब्जा सबू, गाड़ी मोटर सबूर धुआं, कारखाना सबूर धुआं जहाँ ताहा कलुषित करुअछि। तेबे आम माने देखुचु जे खाद्य द्रव्यर क्षेत्र रे यह विशेष प्रभाव पकेइब। जो परिमाण रे खाद्य द्रव्य उपलब्ध थिला सेथिरु अनेक परिमाण रे ताहा कमिजिब, महंगा हबाकू लागिब। ए प्रकार के अनेक जगार अनाहार लोक माने मृत्युवरण करिवे, भयंकर विषय सब घटिब एवं वातावरण अवस्था बदली जीव। तापरे आम देखुछु 8 पद एवं 9 पद रे द्वितीय दूत से आपणार तुरी ध्वनि करुअछंती। आउ से समय कौन होउची 8 एवं 9 पद रे द्वितीय दूत तुरी ध्वनि करन्ते जेपरि अग्नि प्रज्वलित गोटे प्रकांड पर्वत समुद्र निक्षिप्त हला। सेथिरे समुद्रर तृतीयांश जल रक्तमय हो गला, पुणी समुद्र थिबा जीव मानकर तृतीयांश मले और जहाजर तृतीयांश विनष्ट हला। द्वितीय दूत तुरी ध्वनि करिया समय रे जल भागरे घटना सब घटुअछि। विशेष करके समुद्र रे 1/3 जल रक्त हो गला एवं तद्वारा समुद्र रे बासकारी जलचर जीव सबू सेथिरु 1/3 से माने मृत्युवरण करेंगे। केवल ताहा ही नुहे, जो सबू जहाज एई समुद्र उपरे यातायात करे से जहाज मान मध्यरु 1/3 टिके चिंता करे देखंतु 100टी जहाज जदि चल प्रचल होची समुद्र रे 30टी जहाज बा 33टी जहाज नष्ट हो जाउची। आउ सेही अनुपात रे ही सब किछि घटना घटुअछि। जलचर जीव मरुछंती एवं जल ही से प्रकार विषाक्त हो जाउछि, रक्त रे परिणत हो जाउछि। ए प्रकार घटना बहु वर्ष पूर्व रे मध्य घटिथिला। आपणकर मने पडुथबो निश्चय। मिस्र रे जेतले मूसा एवं हारून प्रथम करिकि फारों को देखा करिया पाई जाउछंती, आ सेही समय रे मिस्र नदी जल को से माने रक्त रे परिणत करथिले। आ से प्रकार विषय एबे मध्य घटिबा को जाउछि। भयंकर घटना सबू जेतेबेले कि ए दूत माने तुरी ध्वनि करिवे सेही समय रे घटिब। प्रथम दंडाज्ञा जेतेबेले पृथ्वी उपरे बा भूपृष्ठ रे पडुछि, भूमि उपरे पडुछि, खेत रे पडुछि, द्वितीय दंडाज्ञाटे जल रे पडुछि। ता द्वारा कौन होची आम माने देखिलु जे 1/3 प्रत्येक थर 1/3 समस्त विनष्ट होउछंती। या द्वारा कौन हबो, जहाजर 1/3 नष्ट हेले अर्थनैतिक क्षेत्र रे संकट उपजिब, वाणिज्यिक व्यावसायिक क्षेत्र रे संकट उपजिब। कार्गो जहाज सबू अनेक द्रव्य रप्तानी करे, आमदानी करे एवं जल जहाज गुड़िक व्यवहार करा जाए। सेथिपाई कोटी कोटी टन रो जिनिस आदान प्रदान हुए देश देश मध्य से गुड़ाक बाधा प्राप्त हब। सेतेबेले पृथ्वीर अवस्था कौन हब टिके चिंता करी देखंतु। 10 एवं 11 पदरे आम देखुचु तृतीय दूत से आपणार तुरी ध्वनि करुअछंती। तृतीय दूत तुरी ध्वनि करन्ते अग्निशिखा परि प्रज्वलित गोटे बृहत नक्षत्र आकाशरु स्खलित होई नदी समूहर तृतीयांश और निर्झर गुड़िक उपरे पतित हैला। सेही नक्षत्रर नाम नागदौणा, सेथिरे जलर तृतीयांश नागदौण हैला। आउ अनेक लोक सेही जल हेतु मले, कारण ताहा तिक्त करा जाइथिला। खेत उपरे बा भूमि उपरे, समुद्र जल उपरे बा समुद्र उपरे एवं एबे आसुची मिठा जल उपरे, नद नदी झरणा सब उपरे, जो जल की मनुष्य माने एवं प्राणी वर्ग जीवजंतु माने निजर पानीय जल भाव में व्यवहार करिथांती, निजर अनेक विषय पाई व्यवहार करिथांती। सेही जल उपरे क्रोध ढला जाउची एवं तद्वारा कौन होची जे मिठा जल तिक्त जल रे परिणत होची, पी पारिबे नाही। एलिसा भाववादी समय रे ए प्रकार जल संकट उपजी थिला, जद्वारा कि लोक माने कहिले ओ इटा माने पी पारिबा नाही। आउ सेतेबेले एलिसाए गोटे काठ खंड से जल उपरे पकईले, जद्वारा कि निर्झरणी रु मिठा जल निर्गत हला। तेबे भाई भणी माने एठी
ए प्रकार घटिबो जे जो समस्त मिठा जल लोक माने व्यवहार करथिले ताहा तिक्त जल रे परिणत हबो, विषाक्त होई जीवो आ अनेक लोक मृत्युवरण करिवे। भयंकर घटना सबु घटु अछि। नागद अणा बोलिकी याको कुहा जाउछि, जहाँकि तिक्तता, दुख, विपर्जय, विषाक्त विषय, मृत्युर विषय को दर्शाए। आउ तद्वारा 1/3 विनष्ट होउछि। तापरे आम मैंने देखुचु 12 एवं 13 पदरे, जोठिकी आम मैंने देखुचु चतुर्थ दूत तुरी ध्वनि करुअछन्ति। चतुर्थ दूत तुरी ध्वनि करन्ते सूर्य, चंद्र और नक्षत्र समूहर तृतीयांश आघात प्राप्त हबारु से समय तृतीयांश अंधकारमय हैला, दिवसर तृतीयांश आलोक रहित हैला और रात्रि मध्य तद्रूप हैला। परे मु दृष्टिपात कली आउ आकाशर मध्य भागरे उड़ुथिबा गोटे उत्कृष्ट पक्षी उच्च स्वर रे एहा कहूथिबा सुनिली, हाय 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 पृथ्वी निवासी माने संतापर पात्र, कारण आहुरी 3 जन दूत तुरी ध्वनि करने जाऊँगी। एठारे जो विवरण टी दिया जाइछि, जो घटनार कथा कहा जाउछि, एटा भूमि रे नुहे, समुद्र रे नुहे कि नद नदी उपरे नुहे, यह उच्चरे आकाश मंडल रे घटुअछि, नक्षत्रमाला मानक मध्य रे घटुअछि। आ एठारे गोटे बड़ नक्षत्र जहा पतित हबार आमाने देखुअछु। आउ तद्वारा कौन होउछि, एथिरे सूर्य, चंद्र, नक्षत्र समूहर तृतीयांश आघात प्राप्त हबारु से समस्तर तृतीयांश अंधकारमय हब। टिके चिंता करी देखंतु, सूर्य सारा पृथ्वी को आलोक प्रदान करुअछि, तार 3 भागर गोटे भाग जेतेबेले पूरा अंधारुआ हो जिवो, कला रंगर हो जिवो एवं ताहा आलोक प्रदान करिवो नाही, ताहले पृथ्वीर जो समस्त देश मान करे तार आलोक विच्छुरित होउथिला, सेतरु केतेक देश जो समय रे से माने दिनर आलोक को पाउथिले से माने दिनर आलोक को पाइबे नाही। ता माने पृथ्वी रे मध्य अनेक परिवर्तन घटिजिव। भाई भणी माने गोटे विषय चिंता करंतु, घटना गुड़िक भूपृष्ठ रे घटू, घटना गुड़िक समुद्र रे घटू, किबा घटना गुड़िक नद नदी उपरे घटू, किंबा घटना गुड़िक आकाश मंडलर ग्रह नक्षत्र रे घटू, किंतु ए सब ए प्रकार विपर्जय, ए प्रकार विपदर विषय गुड़िक जहा मनुष्य मान को अस्तव्यस्त करिब, अणनिश्वासी करिब, अनेक अनेक लोक मृत्युवरण करिवे। भाई भणी माने वर्तमान पर्यंत मनुष्य मानकर मृत्युर हार जे प्रकार ताहा केते गुण रे बढ़ी जीव। आ से समय मानकरे होई तो खबर मानकरे मृत्युर ही घोषणा बेसी हब, मृत्यु संबंधी संवाद बेसी दिया जीव, ओ देश रे केते लोक मले ए प्रकार कथा सब बेसी कहा जीव एवं ताहा पृथ्वीवासी को आहुरी भयभीत करिब। गोटे कोरोना भूताणु सारा पृथ्वी को एते भयभीत करदेला, आग को जितेबाला यही सब घटना गुड़िक घटवा जाऊँगी से अवस्था कौन हम आपण प्रस्तुत कि? एथिपाई ईश्वर वाक्य आगरू लेखागला, प्रकाश कर दिगला जे पृथ्वीर अंत कि प्रकार हम, ए जुगर अंत कि प्रकार हम, मनीष इतिहासर अंत कि प्रकार हम, परमेश्वर कि प्रकार भावरे अन्यायर प्रतिकार करने प्रतिफल देकी से दंडाज्ञा सब पृथ्वी उपर ढालिबे, से सबुर कथा यही शेष पुस्तक लिखा अच्छे। अथच जुग जुग धरिकी लोक माने यही पुस्तक को एते अवहेला करि आसी अछंती। आजिर ख्रीष्ट विश्वासी भाई भणी माने मध्य ए पुस्तक को एते ध्यान दियंते नाही। भाई भणी माने आम माने पुस्तक पढ़िबा दरकार, बार बार पढ़िबा दरकार, कारण एटा आम मानक विषय, आम मानकर भविष्यत विषय एठारे लिखा जाइछि। 4 जन दूत मात्र तुरी फुंकिबार विषय ए अध्याय लिखा अच्छे एवं सेतेबेले गोटे उत्कृष्ट पक्षी उड़ी उड़ी सर्वत्र घोषणा करके कथा प्रकाश करुछे, हाय 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 पृथ्वीवासी माने से माने संतापर पात्र। 4टी संताप गत है, आउ 3टी भयंकर संताप आसुअछि, कारण प्रत्येक थर ए विपर्जय ए संताप बढ़ी बढ़ी जाउछि, तार व्यापकता बढ़ी बढ़ी जाउछि, तार प्रभाव बढ़ी बढ़ी जाउछि। आउ सेथिपाई से घोषणा करी कहूछि
जे आउ 3 जण दूत निजर तुरी ध्वनि करिया पाए प्रस्तुत अछंती। भाई भणी माने जो सब घटनार विषय परमेश्वर निरूपण करिअछंती ताहा केही हेले घुंचेई पारिब नाही, बदलई पारिब नाही। सारा पृथ्वीर सबु सरकार एकाठी मिसिले मध्य ईश्वरंकर एई निरूपण को बिल्कुल बदलई पारिबे नाही। एटा मन रखि थांतु। पृथ्वी उपरकू भयंकर दिन सब आसुअछि। तेबे ख्रीष्ट विश्वासी भाई भणी भावरे ईश्वरंकर संतान संतति भावरे आममानकर गुरु दायित्व होउछि प्रार्थनार सेवारे लागि रहिबा एवं ए विपद माड़ी आसुथिबा एई पृथ्वी को पृथ्वीर लोकमानकू प्रभुंक हस्तरे तोली धरिबा। आपणकर प्रार्थना आममानकर प्रार्थना ईश्वरंकर से निरूपण को हित बदलैब नाही, किंतु अनेक लोकंकु से महाविपदरू उद्धार करि पारिब। अनेक लोक नरक को जीवा परिवर्ते ईश्वरंकर परिचय पाइबे, ईश्वरंकर परिवार रे अंतर्भुक्त हेबे। सेथिपाई समय सरीजिबा पूर्वरु आममानकर दायित्व होउछि जो पर्यंत अनुग्रहर समय आममानक हाथ रे रहिछि, आसु ए अनुग्रहर समय को उचित भाव रे व्यवहार करिबा, प्रभुंक निकटरे प्रार्थना निवेदन करिबा, अन्यमानक निकटरे साक्ष्य बहन करिबा, अन्यमानक प्रभु यीशु ख्रीष्टंक विषय रे प्रकाश करिबा, जणैबा, जेपरिक से माने सत्य को जानिबे, बंधनर मुक्त हेबे एवं ईश्वरंकर जीवन पाइके बंचिबे। आज पाए आममानकर समय एठी सरी जाउछि। सेतिपाए आम माने परवर्ती समय रे परवर्ती अध्याय टिके आम माने आलोचना करिबा। तेबे आसु आम माने प्रार्थना करिके आजिर बाइबल अध्ययन को शेष करिबा। प्रार्थना करिबा। प्रिय प्रभु, तुमे आममानको अनुग्रह कल, गोटे अध्याय को आज संक्षेप रे आलोचना करिया पाई साहाय्य कल। सप्त तुरीधारी सप्त दूत आपणा आपणार तुरी ध्वनि करिया पाई प्रस्तुत हवा बेले, हाँ प्रभु, से माने तुरी बजेबा बेले जो सबु भयंकर घटना पृथ्वी बक्षरे समुद्र गर्भरे एवं प्रभु नद नदी उपरे आकाश मंडल रे ग्रह नक्षत्र मानक मध्यरे एवं विशेष करिकी सर्वसाधारण जनतांक उपरे जो प्रलय घटिब, जो भयंकर विषय सब घटिब, हे प्रभु यह निराट सत्य अटे। तुमे आमान को तार बहु पूर्वर चेतावनी देई अछ प्रभु, आमान पाई आउ गोटे सुजोग स्वरूप सुजोग देई अछ। एई सुजोगर सद्व्यवहार करिया पाई आमान को बुद्धि दियो, ज्ञान दियो, विवेचना दियो एवं पाइथिबा सुजोग को जेपरि केही भी हाथ छड़ा न करू साहाय्य कर। आमाने तुम निकटरे प्रार्थना करिबो लोकमानकर निमंते, पृथ्वीर निमंते, प्रकृति जगतर निमंते। आमाने मध्य तुमर साक्ष्य बहन करिबो एवं लोकमान को तुमर सत्य वाक्य को जणैबो। सेई शक्ति अनुग्रह आत्मांकर सहायता आमान को प्रत्येक को दियो। आज अध्ययन आरंभ रही पर्यंत सहित हे आसीथिबारु धन्यवाद करी এই समस्त प्रार्थना निवेदन तुम चरण तले समर्पण करुछु। विशेष भाव में आज अध्ययन जोग देथिबा प्रत्येक भाई भणी तुमर धन्यवाद करे। से समस्त को व्यक्तिगत भाव में पारिवारिक भाव में आशीर्वाद कर। गौरव महिमा तुमको दे यीशुंक नाम रे मागुछु, आमेन। एतले पिता ईश्वरंकर गभीर प्रेम, प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर असीम अनुग्रह दया, पवित्र आत्मांकर शांति शक्ति सुमधुर सहभागिता शिक्षा और चेतना एवं पुणी सदाबले आमान प्रत्येक सांगरे सारा विश्व रे थिबा ख्रीष्टाश्रित प्रत्येक भाई भणी सहित रही साहाय्य उपकार करंतु, आमेन। समस्त को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आज बाइबल अध्ययन रे जोग देथिबारु। प्रभु आपण को आशीर्वाद करंतु। आसंता थर आम माने 9 अध्याय को आलोचना करिबा, सेति पई पढ़ी के आसीथिबे। बहुत धन्यवाद।